Jai Hind friends. We have started the series of 12th class syllabus in which we complete our syllabus of 12th class and do a lot of questions and lot of practice within the time limits so that your preparation will be short, and keeping all this in mind we complete our syllabus on time and with the good content and good understanding and easy explanation. I will provide you a better thing so that you did not need to find anything from anywhere. So in this series we done the elements of math. There are a lot of questions, even NCERT are a part of this. That's why this is very important, and this is also very important for your other exam preparation. If you are preparing for NDA and JEE Mains and other competitive exam like Air Force and Navy, so this video is very helpful for all those students who are preparing for those exams and do basics of all these things from basics. So here we did in the last lecture examples of 1.2 exercise and basics. So continuing from there, now we do the example number 5, because till example number 4 we had done in last lecture. So example number 5, we start from example number 5. Example number 5, let me show in the book. Example number 5 is here. Example number 5 is given that show that the relation R defined in set A of all polygons as R is equal to P1 P2. P1 and P2 have same number of side. Okay, is an equivalence relation. Yes. Where is the set of all elements in A related to right angle triangle T with the side 3, 4, 5. So here first of all we have given that is A क्या है यहाँ पे triangles, not triangles, polygons. यहाँ पे polygons दिए हुए all types के. सबसे छोटा polygon हमारा क्या होता है ये आप कमेंट में बताएंगे. अगर आपको कहीं पे भी कोई भी पार्ट समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर शॉर्ट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा. तो सेट ये दिया हुआ है पॉलीगन्स का और रिलेशन हमें डिफाइन किया हुआ है P1 P2 कोमा क्या होगा P1 एंड P2 सेम नंबर साइड है, सेम साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स. ओके, दिस इज गिवन. इफ P1 इज quadrilateral then P2 is also a quadrilateral, but quadrilateral here difference in quadrilateral. What is difference in quadrilateral? That if both are the length of sides are equal in polygons, means polygons are those figure which have equal length of sides. If there are 3 sides, there are 4 sides, there are 5 sides, then the length of sides are equal. So here what is the polygons for 4 sides? That is square. So for square, this is square, this is square. Yes, this is pentagon, this is pentagon, this is hexagon, this is hexagon. So P1 and P2 are those. For if we have to prove that this is equivalence relation, so first of all we have to check reflexive. Reflexive condition is what? A1 A2 मीन्स A1 कोमा A1 ये सब डबलेट्स होने चाहिए, जितने भी ट्रायंगल्स हैं पॉलीगन्स हैं रिलेशन के अंदर होने चाहिए. तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि P1 P2, क्या P1 बराबर होंगे? सेम होंगे. यस, P1 भी तो होंगे क्योंकि P1 और P2 वो पॉलीगन्स है जिनकी साइड सेम है. P1 भी और P2, यहाँ पे P1 और P2 भी तो हो सकता है क्योंकि सेम नंबर साइड होगी P1 के अंदर. ये चीज़ समझ आ गई. तो आप पहले लिख सकते हैं कि P1, P1
बिलोंग्स टू आर, P2 कोमा P2 बिलोंग्स टू आर, P3 बिलोंग्स टू आर, लाइक दिस टाइप से हम कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि R इज़ रिफ्लेक्सिव, ये हो गया। फिर करते हैं सिमेट्री के लिए चेक। अगर P1 P2 बिलोंग्स टू R है तो क्या P2 P1 बिलोंग्स टू R होगा? P2 कोमा P1 यस, क्योंकि इन्होंने रिलेशन क्या डिफाइन किया है कि P1 और P2 क्या होने चाहिए? सेम नंबर ऑफ साइड होने चाहिए, ये हमें डिफाइन किया हुआ। तो P1 P2 की सेम नंबर साइड है तो P2 और P1 की भी सेम साइड होगी नंबर ऑफ साइड, तो ये भी बिलोंग्स करेगा, दिस इम्प्लाइज। सो यहाँ पे लिख सकते हैं R इज सिमेट्रिक। ठीक है। थर्ड हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। अगर P1 एंड P2 रिलेशन के अंदर है, मतलब P1 और P2 की साइड नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, P2 एंड P3 ये भी रिलेशन के अंदर है, मतलब P2 और P3 की साइड्स इक्वल है, मतलब P1 बराबर है P2, P2 बराबर है P3 के, तो P1 P3 के बराबर होगा साइड नंबर ऑफ साइड, P3 भी इसके अंदर बिलोंग्स टू R होगा। या हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो लिख देंगे R इज़ ट्रांजिटिव, फिर लास्ट लाइन में देंगे देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ये हो गया। अब हमें एक कंडीशन और दी रखी थी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है 3 4 5 नंबर 3 4 5 यूनिट साइड का, तो अब इसको भी यहाँ पे कर देता हूँ मैं साइड में, ताकि ये क्वेश्चन इसके साथ हो जाए। 3 4 5 ठीक है, एक ट्रायंगल है 3 4 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको आप P मान लें। तो अपने को बताना है कि और कौन सा होगा इसके अंदर अवेलेबल। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड 3 एंड 4 एंड 5 एंड, मतलब कि वो सभी ट्रायंगल होंगे। इसमें लिखा भी हुआ है हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। सेम नंबर ऑफ साइड मतलब 3 साइड वाला वो ट्रायंगल होंगे, 3 साइड वाले सभी ट्रायंगल होंगे। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम कर सकते हैं कि जो ऑल ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल होंगे 3 साइड के, वो सभी इससे बिलोंग करेंगे। इस अपने को कोई कंडीशन नहीं चेक करनी, अपने को कुछ और चीज़ दी होती तो अपन चेक करते हैं, बट अपने को इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सेम नंबर ऑफ साइड होंगे, ये हमें दे रखा है। ये देखो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। सेम नंबर ऑफ साइड का मतलब है ये, अगर ये ट्रायंगल है तो इसके साथ कोई भी ले लो, P2 क्या होगा? ट्रायंगल ही होगा, ठीक है, क्योंकि 3 साइड के इसके रिलेशन के अंदर अवेलेबल होंगे। ये सेम भी होगा और इसके अलावा सभी ट्रायंगल, ऑल TRING ट्रायंगल इज रिलेटेड टू, इसको मान लेते हैं T1 इन R मतलब रिलेशन, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये देना था अपने को। 5th एग्जाम्पल हो गया। 6th एग्जाम्पल करते हैं। 6th एग्जाम्पल के अंदर क्या है ये देख लेते हैं। 6th एग्जाम्पल मैं आपको शो भी कर देता हूँ पहले। 6th एग्जाम्पल अपने को दिया हुआ है, एक A सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 1 to 9 एलिमेंट है, और रिलेशन दिया हुआ है A क्रॉस R से, क्या है, A, B रिलेटेड टू C, D। मतलब क्या है, R बी द रिलेशन इन A क्रॉस A। मतलब सबसे पहले अपने को A क्रॉस A निकालना पड़ेगा। A क्रॉस A निकालने के बाद एक रिलेशन और दिया होगा उसका A क्रॉस A के साथ ही, ये दे रखा है अपने को। इसका अंदर क्या है, A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C। मतलब कि पहला और लास्ट वाला दूसरा और इसका फर्स्ट, ये चीज़ हो गई, इक्वल होगी। इन एक प्रूव दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन और ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास 2 to 5। आल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास, इसकी इक्विवेलेंस क्लास बतानी है अपने को कौन सी होगी, तो वो बाद में बताएंगे, पहले आप इसको कर लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने एक रिलेशन A क्रॉस A दिया हुआ है सबसे पहले 1 2 3 से 9। A क्रॉस A क्या होगा, 1 1 1 2 1 3, चलते 9 9 होगा।
मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 9 × 9 81 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। ये होंगे, अपने को एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन क्या है, A, B, कोमा बड़ा वाला कोमा, ये एक एलिमेंट है, दूसरा B, C ये दूसरा एलिमेंट है, ये मान लेते हैं। डिफाइन कैसे है, A + D = B + C, ये दिया हुआ है अपने को रिलेशन। तो अपने को क्या करना है, अगर अपने को इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है ये प्रूव करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है ये। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, A, B, A, B, ठीक है। अब अपने इसके अंदर चेक कर, इसके अंदर पुट करके देख लेंगे। A, B मतलब इसका मतलब ये फर्स्ट A, B, C, D आएगा, C, D, ये है रिलेशन अपने पास जी, ठीक है। इसमें ये दी हुआ है, देख लो इसके अंदर A, D, B, C, A, D, B, C, ये रहा A, B, C, D। तो मतलब इसके अंदर क्या है, फर्स्ट और इसका सेकंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट ऐड करना है, इसका सेकंड इसका फर्स्ट, समझ गए। तो इसका फर्स्ट इसका सेकंड, इसका फर्स्ट और सेकंड क्या हुआ, A + B, इसका फर्स्ट इसका सेकंड इसका फर्स्ट, ये रहा, इसको ऐड करना है, B + A, ये इक्वल होंगे, यस ये इक्वल होंगे। तो मतलब क्या है, R इज़ रिफ्लेक्सिव बिकॉज A, B बिलोंग्स टू R, ये होगा। अब सेकंड आप चेक करते हैं सिमेट्री का, A, B, C, D, ये अपने रिलेशन से बिलोंग करता है। तो C, D, A, B ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, ये अपने को चेक करना है, ये चीज़ अपने को चेक करनी है। टू चेक करेंगे, तो इसका फर्स्ट इसका सेकंड, C + B = A + D, D + A, D + A। तो इन्होंने भी क्या दिया हुआ था, A + D = B + C, A + D = B + C, इक्वल है, यस ये इक्वल है, A + D B + C, ये इक्वल है। ये चीज़ तो अपने को बतानी थी। तो क्या होगा, C, D, A, B भी सेट से रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो आप लिख देंगे R इज़ सिमेट्रिक, ये लिख देंगे R इज़ सिमेट्रिक, ये लिखना पड़ेगा आपको। देख लो एक बार इसको। फिर ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करेंगे, A, B, C, D ये रिलेशन से बिलोंग करता है। फिर C, D, E, F ये रिलेशन से बिलोंग करता है। अब यहाँ से कुछ एक चीज़ें चेक करनी पड़ेगी अपने को, यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, थोड़ा सा आपको अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। A + D = B + C यहाँ से है, ये है तभी ये इसके अंदर है। C + F = D + E, ये ठीक है, D + E इसके अंदर है, तभी ये इसके अंदर है। अपने को चेक क्या करना है, A, B चेक क्या करना है अपने को, A, B, E, F ये इसके अंदर होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है अपने को, ये चेक करना है। तो इसके अंदर क्या बनेगा, A + F = B + C, A + F = B + E, A + F = B + E, ये है, ये अपने को चेक करना है। अगर ये चीज़ ट्रू हो जाती है तो आप बोल देंगे कि ये चीज़ इसके अंदर एलिमेंट ये वाला है, प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट है तो ट्रांजिटिव है। तो इसको अपने पीछे वाली चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी इसके अंदर, जैसे कि A + F B + C। तो अपन क्या करेंगे, B + D आएगा यहाँ पे, A + D B + C, ठीक है, ठीक था ये। तो अब इसके लिए क्या चेक करेंगे, सबसे पहले
अपने पास ए है, एफ़ की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, किसकी फॉर्म में आए, डी की फॉर्म में निकाल लेंगे। चलो वो निकालते हैं पहले, ठीक है। निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा अपने को, देखते हैं। ए तो यहाँ पे एज इट इज़ है, एफ़ की वैल्यू अपने ने यहाँ से निकाल ली, तो क्या आएगी, डी प्लस ई माइनस सी, ये आ गई, इज इक्वल टू बी यहाँ पे है ई की वैल्यू। ई की वैल्यू आप कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे ई की वैल्यू। ई क्या आएगी, सी प्लस एफ माइनस डी, सी प्लस एफ माइनस डी, ये आ गया। अब जो चीज़ कटेगी वो अपने को काट देनी है, जो चीज़ नहीं कटेगी वो अपने को रख लेनी है। अब यहाँ पे ई आ गया, ये थोड़ा सा 1 मिनट। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आप क्या करेंगे, सिर्फ ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी अपने को, ए प्लस एफ़ की वैल्यू रख लेंगे क्या, डी प्लस ई माइनस सी, ये बी प्लस ई को एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ये ई उधर जाएगा और सी को उधर ले जाएंगे, तो ए प्लस डी आ गया, सी और ई को इधर ले जाएंगे तो ये ई इधर जाके माइनस, ये सी इधर आगे प्लस का हो जाएगा, बी प्लस ई, ये वाला माइनस ई, ये वाला प्लस सी, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये चीज़ देखो यहाँ पे है ना, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, हाँ है ये। अगर ये चीज़ है तो आप क्या लिख देंगे कि जो ए कोमा बी कोमा ई कोमा एफ ये बिलोंग्स टू आर होगा। अगर ये आर होगा तो आर इज़ ट्रांजिटिव, आर इज़ ट्रांजिटिव। अगर आर ट्रांजिटिव है तो आर इज़ इक्विवेलेंस, मतलब आर ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव अपन ने पहले शो कर दिया था, तो इक्विवेलेंस हो गया ये एग्जांपल नंबर 6 भी हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो अभी ये कर रहा है ए प्लस ए बी सी डी वाला, इसके चांसेस ज़्यादा है आने की, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछा जाता है, इक्विवेलेंस है या नहीं है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक का ऑप्शन दे देते हैं 3-4। लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ऑफ आर बी द रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाय दिस। मैं 7वां एग्जाम्पल आपको शो कर देता हूँ। एक एन है, सेट है नेचुरल नंबर्स का, और एन के ऊपर एक क्या है, एन क्रॉस एन पे रिलेशन डिफाइन है, ए कोमा बी रिलेशन रिलेटिव टू सी कोमा डी। क्योंकि क्या है, ए डी ब्रैकेट बी प्लस सी ए डी, शो दैट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सेम पहले वाले जैसा क्वेश्चन ही है, तो इसके अंदर रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए अपने को सेम लिख लेंगे एक बार, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो ये चीज़ तो आप कर लेंगे, चलो एक बार करके दिखाई देते हैं अब आपको। एग्ज़ाम्पल नंबर 6, ठीक है, या बुक के अंदर सोल्व करा दो, टाइम बचेगा अपना बुक के अंदर सोल्व, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको कंप्लीट, नेक्स्ट बुक के अंदर सोल्व कर लेंगे। एक है एन नेचुरल नंबर का, ये आपको दिखानी, यहाँ पे लिख रहा हूँ। एन है नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। अपने को एन क्रॉस एन निकालना है, पहले निकाल लिया। यहाँ पे नेचुरल क्रॉस नेचुरल ये होगा, यही दे रखा होगा कॉमे के अंदर, यही एलिमेंट मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे। फिर क्या हो गए, यहाँ पे बहुत सारे होंगे। फिर रिलेशन दिया हुआ है ए कोमा बी, ये दिया हुआ ना, ए कोमा बी रिलेटिव टू सी कोमा डी, ये रिलेशन के अंदर है। कैसे है ये दे रखा है अपने को, बी ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, ये दिया हुआ है। तो अब इसके लिए चेक करने के लिए अपने को स्पेशल क्या है, इसको आप सिंपलीफाई कर ले पहले।
या बाद में करें? चलो एक और रिफ्लेक्सिव शो करने के बाद करेंगे सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए ए कोमा बी ये अवेलेबल होना चाहिए कहाँ पे? रिलेशन के अंदर। ये चेक करना है अपने को सभी के लिए, ये है या नहीं है, ट्रू है क्या नहीं। तो ये वैल्यू पुट किसी इधर कर देंगे। ए तो ए एज इट इज़ है, डी की जगह क्या बन गया बी, सी की जगह बन गया ए बी, ये क्या है बी तो एज इट इज़ है, सी की जगह ए बन गया, ए बी ए बी ए ये है इज इक्वल टू बी, सी की जगह बन गया ए एज इट इज़ है, डी की जगह बन गया बी। तो देखो इसमें देखो ए बी बी प्लस सी ए प्लस बी या ए प्लस बी प्लस ए, ये दोनों चीज़ इक्वल है। तो अपन लिख सकते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ये बिलोंग्स टू आर है तो आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अब क्या करते हैं सिमेट्री का। सिमेट्री के लिए भी चलो एक बार कर ही लेते हैं अपन डायरेक्ट ही। ए कोमा बी सी कोमा डी ये है, ये इसके अंदर है, सी कोमा डी कोमा ए कोमा बी ये अपने को चेक करनी है। तो अब रिलेशन में पुट कर देते हैं। क्या था इसका कहने का मतलब है इंटरचेंज हो गए, जहाँ पे ए था वहाँ पे सी हो गया, जहाँ पे डी था वहाँ पे बी हो गया, जहाँ पे सी था वहाँ पे ए हो गया, और जहाँ पे डी था वहाँ पे बी हो गया। तो रिलेशन अपने को ए की जगह सी, डी की जगह बी, ठीक है, ए की जगह सी, डी की जगह बी, ए की जगह ये, मतलब इसकी जगह ये हो गया, इसकी जगह ये हो गया, सारा चेंज हो गया, इंटरचेंज। तो अपने रिलेशन के अंदर था ए डी, ए ये रहा, डी की जगह क्या आ गया बी आ गया, फिर है बी प्लस सी, बी की जगह आ गया डी, सी की जगह आ गया ए, ठीक है, बी सी, बी की जगह आ गया डी, सी की जगह आ गया ए, और ए प्लस डी, ए की जगह सी, डी की जगह बी। ये क्या इक्वल है या नहीं है अपने को ये चेक करना है। मेन बात अपनी यहाँ पे ये इक्वल है क्या नहीं। अपने को दिया क्या हुआ था ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। यहाँ पे आप क्या करेंगे देखो, अपन या तो b प्लस सी की वैल्यू निकाल लेंगे या a प्लस डी की यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। समझाई? देखते हैं दोबारा से। मतलब या तो अपने को कुछ ना कुछ एक की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से निकाल के एक वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो अब अगर लेते हैं b प्लस किसकी करें, आप कर लेते हैं बी सी की, बी सी ये रहा, b प्लस सी ये रहा। तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं b प्लस सी क्या आएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ए डी, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस डी। क्या आ गया, समझ आ गया आपको? अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा, a पुट इन वन कर दिया, ए बी डी प्लस ए इज इक्वल टू डी ए। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, ए डी बी सी। तो ए की जगह क्या था, ए की जगह आ गया सी, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आएगी सी, ए जगह सी, डी की जगह बी, ए सी ए डी बी सी, बी प्लस सी डी प्लस ए, ठीक है, और बी सी बी डी ए प्लस बी सी बी डी ए प्लस डी सी प्लस बी, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे पूरी, बी सी डिवाइड बाई ए डी, ब्रैकेट में क्या है ए प्लस डी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, सी बी डी प्लस ए, ये हो गया डी ए, क्या आया बी सी ए की मल्टीप्लाई करवा दी, बी सी ए डिवाइड बाई ए डी,
प्लस बी सी डी की मल्टीप्लाई करो, बी सी डी मल्टीप्लाई ए डी, क्या आ गया। अब यहाँ से ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कॉमन क्या आ गया, अब देखते हैं, सी बी डी प्लस सी बी ए इज इक्वल टू डी ए, नीचे डी है ना, डी ए बी सी, डी ए की मल्टीप्लाई से करवा दी, डिवाइड बाय डी ए बी सी डिवाइड बाय नीचे क्या है ए, ठीक है। डी से डी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सी बी डी प्लस सी बी ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी सी प्लस डी बी सी, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, ये दोनों इक्वल है, पता लग रहा है आपको, सी बी डी ये रहे आपस में इक्वल, ए बी सी ये रहे आपस में इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड की इक्वल आ गई, तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। तो क्या लिखेंगे, आर इज सिमेट्रिक। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करनी है अपने को, ए बी सी डी जहाँ पे दे रखा हो ना, तो अपने को जो गिवन रिलेशन है ना, वहीं से वैल्यू पुट करने के कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, अपने को रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है कि है कहना क्या चाह रहा है, कैसे रिलेशन है ये, ठीक है। अब ट्रांजिटिव करेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल बन चल जाएगा ये ट्रांजिटिव के लिए, तो अपन ट्रांजिटिव के लिए भी चेक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना चेक किए तो अपने को कोई मार्क्स देने से रहा। तो अपने को क्या चेक करना है, ए बी सी सी डी, ए बी सी डी, फिर सी डी ई एफ, ये रिलेशन में है। इसके लिए क्या था, इसके लिए था ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, ये दिया हुआ था। इसके लिए क्या होगा, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई, सी एफ हो गया डी प्लस ई, अब डी ई सी प्लस एफ, ये है। मतलब कि पहला लास्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई, बाकी ऐड में, फिर जो यहाँ पे ऐड मल्टीप्लाई में था वो ऐड में हो गया, और जो यहाँ पे ऐड में था वो मल्टीप्लाई में हो गया। तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, सी एफ की मल्टीप्लाई, बाकी बच गया वो ऐड में आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, जो मल्टीप्लाई में था वो यहाँ पे ऐड में आ गया, और जो डी था वो मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। ये रिलेशन दिया हुआ है अपने को चेकआउट क्या करना है, जो ए बी है ना, ए कोमा बी और ई कोमा एफ, ये रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए, अपने को ये चेक करना है ये, ठीक है। अगर ये आ जाता है तो इसके लिए क्या, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई, ए एफ रिमेनिंग बी प्लस ई इज इक्वल टू, फिर बी ई मल्टीप्लाई में और ए प्लस एफ एडिशन में हो गया। अब अपने को ऊपर से वैल्यू उठा के इसमें पुट करनी है। ऊपर से वैल्यू किसकी उठा के पुट करेंगे वो देखते हैं। अपन देखते हैं बी प्लस ई में तो कुछ ऐसा नहीं है, मेरे को लगता है रिलेशन ऐसा, बी ई कोई लगातार तो बी ई है ही नहीं, यहाँ पे बी ई नहीं पाएगा, बी ई यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे मतलब यहाँ से आ रहा है कि जो है एक वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर देंगे और एक वैल्यू अपन यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। अगर ये ना करना अच्छा लगे अपने को तो कुछ और तरीके भी हो सकते हैं, बट अपन ये करेंगे। अपन किस में दिखाना चाहेंगे, ए यहाँ पे एज इट इज़ है, बी यहाँ पे है एज इट इज़ है, एफ और ई फालतू है, यहाँ पे डी और सी फालतू है, ठीक है। इसी तरीके से बी यहाँ पे ठीक है, ई और एफ, मतलब ई और एफ है ना, वो अपने को एलिमिनेट करने हैं। वो कैसे करेंगे अपन ई और एफ एलिमिनेट, आप करेंगे यहाँ से या तो आप ई की वैल्यू निकाल लें या एफ़ की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। किसकी वैल्यू निकालें,
वो आप अभी चेक करेंगे। इसको निकालने के लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा, यहाँ से चेक करना पड़ेगा आपको। यहाँ से अगर आप निकालने बैठ जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टिपिकल बन जाएगा, क्योंकि पहले अपने को इसको सोल्व करना पड़ेगा। पहले सोल्व भी कर लेते हैं अगर आपको ऐसा अच्छा लगे तो। सी एफ डी प्लस सी एफ ई इज इक्वल टू डी ई सी प्लस डी ई एफ, ये है। अपने को निकाल ले, किसकी वैल्यू निकालें, अपन निकाल लेते हैं अपन यहाँ से सी एफ ई डी सी डी ई सी डी ई एफ, मतलब तीन जगह पे है, तो अपन एक जगह की निकाल लेते हैं, कहीं से भी निकाल लें। तो अपन निकाल लेते हैं ई की वैल्यू या एफ की निकाल लेते हैं। सी एफ डी प्लस सी एफ ई माइनस डी ई एफ हो गया इज इक्वल टू डी ई सी, ये हो गया। अब यहाँ से एफ़ कॉमन ले लेंगे, एफ़ कॉमन लेंगे, क्या आ गया सी डी प्लस सी ई प्लस यहाँ पे आ जाएगा डी ई एफ डी ई सी। अब ये एफ़ यहाँ पे रहेगा और बाकी डिवाइड में आ जाएगा डी ई सी डिवाइड बाई सी डी प्लस सी प्लस डी ई। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल आ जाएगा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। लास्ट में रिजल्ट बनेगा ए डी ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ब्रैकेट ए प्लस डी, यही आएगा। इसको वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट में लाइन लिख देंगे देयरफॉर आर इज़ ट्रांजिटिव। और एक सेकंड तरीका मैं क्या बता रहा था, सेकंड तरीका ये है कि आप इसको ऊपर ही सॉल्व कर लें, मतलब कि इसको सॉल्व कर लें अलग से। इसको और तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया सॉल्व करने का। इसका सेकंड तरीका है वो अपन नेक्स्ट पेज पे करे हैं, सी एफ डी प्लस ई, ये अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट सी एफ प्लस डी इज इक्वल टू डी ई सी प्लस ये है। तो क्या करेंगे, इसी पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसके नीचे डी प्लस ई, डी इसके नीचे चला गया, सी प्लस एफ इसके नीचे क्या आ जाएगा, सी एफ आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम अलग अलग कर लेते हैं, डी डिवाइड बाई डी ई प्लस ई डिवाइड बाई डी ई, सी डिवाइड बाई सी एफ प्लस एफ डिवाइड बाई सी एफ। ठीक है, यहाँ से जो चीज़ कैंसिल होगी वो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे बच गया 1/e इज इक्वल टू 1/d इज इक्वल प्लस 1/f प्लस 1/c, ये आ गया। ऐसी चीज़ आ जाती है ना तो बहुत आसान हो जाता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये आ गया। अब पहले को सॉल्व कर लेते हैं। पहले को सॉल्व करके क्या था, 1/b 1/c 1/a 1/d ऐसे आता। ऐसा आने के बाद अपने को सिर्फ एक इंटरचेंज करनी होती है, सिंपल सी वैल्यू। इसमें कैलकुलेशन, पहले वाले में कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी है बट इसमें कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, ये तरीका भी आप फॉलो कर सकते हो। मतलब वहाँ से एक तो इसकी कैलकुलेशन आ गई और क्या था अपने को दिया हुआ था, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, ए डी बी सी बी सी ए डी, ए डी बी सी बी सी ए डी। इसी तरीके से इसकी भी नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो क्या जाएगा, ये आएगा 1/, बी सी इसके नीचे आएगा, बी सी बी कैंसिल प्लस 1/b इज इक्वल टू ए के नीचे ए के जैसे 1/d प्लस 1/a, ये आएगा। तो इसे सिमेट्रिक चेक करना तो और भी आसान हो गया। ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल, आपस में इंटरचेंज करना है, सिर्फ ए बी सी डी को चेंज करेंगे तो सिमेट्रिक तो इजी हो जाएगा जमाई। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, यहाँ से आप एक वैल्यू है ना किसकी, 1/f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वल आ जाएगा, इसकी इक्वल आ जाएगा। इसके इक्वल आते ही हम लिख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इसको आप सोल्व करना है एक बार हाथ से तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो और भी इसको कोई और मेथड से कुछ और तरीके से करवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए, वो इजी से है, मैं आपको बुक में करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। इफ़ R1 एंड R2 are two equivalence relation on a set A,
देन शो दैट R1 का इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें कुछ नहीं है, अगर R1 इक्विवेलेंस है R2 इक्विवेलेंस है, जो इसके अंदर मैं आपको वेन डायग्राम से भी करवा दूंगा तो भी ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी है। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8, R क्या है? इक्विवेलेंस, ये भी R1 ये R2, ये भी इक्विवेलेंस ये भी इक्विवेलेंस, तो इसके बीच में जो पार्ट रह गया वो भी तो इक्विवेलेंस ही होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, मतलब ये कंप्लीट इक्विवेलेंस है, तो इसका इंटरसेक्शन भी तो इक्विवेलेंस होगा। यस, इक्विवेलेंस होगा। बस वही चीज़ है। यहाँ पे इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे क्या किया हुआ इन्होंने बुक के अंदर टेक्निकल लैंग्वेज में। गिवन R1 इक्विवेलेंस रिलेशन और सेट है, R1 है ये, R2 है ये, R1 का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा यस, R1 इंटरसेक्शन आल्सो रिलेशन हो ये इसका कंप्लीट हो गया। इसको कुछ और तरीके से भी कैसे है, कंप्लीट रिलेशन इक्विवेलेंस दिखाने के लिए क्या होगा, A, A R1 से भी है, A, A R2 से भी है, बिकॉज इक्विवेलेंस है। तो A है वो भी तो R1 इंटरसेक्शन R2 है, तो वो भी इक्विवेलेंस होगा। इस तरीके से उल्टा भी कर लेंगे, सिमेट्री का AB R1 से है, R2 से इंटरसेक्शन से है, तो BA भी तो इंटरसेक्शन से ही होगा, ये भी हो जाएगा। R1 R2 सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब ट्रांजिटिव की बारी आ गई। ट्रांजिटिव के लिए AB BC ये रिलेशन से है, तो इसका B से C होने वाला रिलेशन से है, तो AC भी रिलेशन से ही होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से ले रहे हैं हम तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।